In this chapter, till now, we have read about different nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Now, today we will read about the balanced diet. The food we take every day, like dal, chapati, rice, curd, vegetables, fruits, and milk, is called our diet. We need all the nutrients, water, and dietary fibers to keep our body active and healthy. The diet which contains all the nutrients in right proportion is called balanced diet. Underline this. It varies from person to person depending upon the gender, age group and living style. So balanced diet क्या होता है? द डाइट जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में मीन्स राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको बैलेंस डाइट कहते हैं. लाइक अ डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट हों, उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है. और ये हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होती हैं. लाइक पर्सन की एज के अकॉर्डिंग, लाइक छोटे बच्चों में जैसे आपकी एज के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होती हैं. और लेबर जो पूरा दिन हार्ड वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं. सो सिमिलरली जेंडर मीन्स वेदर अ पर्सन इज़ अ मेल और फीमेल, उसको भी अलग कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड अस, बैलेंस डाइट से हमें क्या क्या मिलता है? The sufficient amount of energy required by our body, materials to repair the damaged cells or tissues of the body, materials for growth and reproduction. A balanced diet for a normal and healthy person should contain carbohydrates 60%, fats 15%, proteins 25%, and small amounts of vitamins and minerals. So these all nutrients we require in different amount. Now in this picture you can see these components of balanced diet are being shown. Okay, now fat rich food, protein rich food, vitamins and mineral rich food, and carbohydrates rich food. So these all nutrients we require in different amounts by our body. A growing child, a pregnant woman and a nursing mother need more proteins. A laborer and sports person need more energy. They need more carbohydrates and fats. An ill person requires more vitamins and minerals to fight against diseases. Hence, he needs more fruits and vegetables. Almost all the food items contain two or more nutrients, but only one of these nutrients is more abundant in one food item. Growing child मतलब एक बढ़ते हुए बच्चे को, प्रेग्नेंट मदर एंड अ नर्सिंग मदर, उनको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. लेबरर जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है, स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनको क्या चाहिए ज़्यादा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. इल पर्सन जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसको ज़्यादा विटामिन और मिनरल चाहिए क्योंकि वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो क्षमता है डिजीज़ से लड़ने की उसको मजबूत बनाते हैं. जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनमें किसी में एक ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और किसी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. नॉलेज डेस्क. Milk is a complete food as it contains all the nutrients needed by our body except vitamin C. मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी जो उसमें नहीं होता. पल्सेस मीन्स दालें आर रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. सीरियल्स also contain both these nutrients, therefore they make bulk of our diet. सीरियल लाइक ग्रेन्स जैसे वीट और राइस हैं वो हमारा मेन फूड होता है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. स्प्राउट्स of moong, black gram etc. are rich in proteins, carbohydrates and vitamins. Daily intake of dal, rice, chapati, green vegetables and a little of jaggery provides complete nourishment to the body. Deficiency diseases. As the name suggests, deficiency means कमी होना. किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने से हमें deficiency diseases हो सकती हैं. Deficiency of one or more nutrients in the diet is expressed in the form of some deficiency symptoms. These are called nutritional disorders or deficiency diseases.
डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 4 हेड्स. प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन मीन्स कम होना, उससे क्या होता है, क्वाशोरकर. प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, PEM, मेरास्मस इज द डिजीज नेम. विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस. We will read in detail about these diseases. First one is protein malnutrition. इससे disease होती है क्वाशोकर. The protein deficiency disease, protein malnutrition, kwashiorkor, occurs in children of 1 to 5 years of age if they do not get sufficient amount of mother's milk. Symptoms मतलब बच्चों में क्या क्या लक्षण उसके नज़र आते हैं. Children suffering from kwashiorkor show stunted growth. स्टंटेड ग्रोथ मीन्स उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती. लार्ज पोर्ट लाइक बैली, उनका जो स्टमक है, पेट है, वो स्वोलन मतलब आगे को फूला हुआ होता है. मेंटल रिटार्डेशन, इन बच्चों का जो ब्रेन है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता. स्वोलन फेस, फेस स्वोलन सूजा हुआ दिखता है. थिन लेग्स एंड क्रैक्ड एंड स्केली स्किन, जो स्किन है उसमें जैसे ड्राई स्किन होती है, स्केल्स टाइप, और क्रैक्स मतलब उसमें क्रैक्स नज़र आते हैं. नॉलेज एज पीपल डू नॉट सफ़र फ्रॉम फैट डेफिशिएंसी बिकॉज एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स फॉर स्टोरेज. लोगों में फैट डेफिशिएंसी नहीं होती बिकॉज अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए तो वो एज अ फैट स्टोर हो जाते हैं. सो हमारी बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी होती हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, लाइक प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन और मिनरल की, और उनसे डिजीज़ेस होती हैं. विच न्यू वर्ड्स वी हैव रेड ओवर हियर इन दिस टॉपिक. डेफिशिएंसी, द लैक और शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Malnutrition, the condition occurring in a person when not getting enough nutrients. Now in this you can see two pictures. First child is suffering from kwashiorkor, other child is suffering from marasmus. Now next disease that is occurring due to protein energy malnutrition. Protein और energy means carbohydrate की कमी से जो disease होती है, that is marasmus. Protein energy malnutrition is a disease caused due to the shortage of proteins and carbohydrates in the diet of children. This disease is called marasmus. और इसके symptoms, लक्षण क्या हैं? Children suffering from marasmus are very thin and weak with loose folds of skin. उनकी जो skin है वो लटकने लग जाती है. In such children, growth of body stops and the tissues are slowly destroyed. Next, vitamin deficiency diseases. The diseases caused due to deficiency of different vitamins in the diet are given in table. Vitamin, their deficiency diseases and symptoms. First one, vitamin A. Vitamin A से कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और इसमें क्या होते हैं, ड्राइनेस ऑफ आइज एंड स्किन, इम्प्रॉपर विजन इन डिम लाइट. जिस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो इवनिंग के टाइम में जब लाइट कम होती है ही बिकम्स ब्लाइंड. मीन्स वो कम लाइट में वो देख नहीं सकता, उस टाइम वो बिल्कुल ही कैन नॉट सी एंड ही बिकम्स ब्लाइंड. नेक्स्ट, द डिजीज अकरिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज बेरी. इन बेरी व्हाट हैपन्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, नर्व्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं. स्पीच डिफ़िकल्टी. विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है स्किन डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग में स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेशन ऑफ आइज एंड पुअर ग्रोथ. विटामिन B6 इट कॉजेज एनीमिया, कन्वल्शंस इन इन्फेंट्स. कन्वल्शन मीन्स फिट्स पड़ते हैं उन्हें. येलोइश स्किन कलर एंड वीकनेस. विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है, जनरल वीकनेस, सोरनेस ऑफ टंग में पेन स्टार्ट हो जाता है, क्रैकिंग कॉर्नर्स ऑफ माउथ. विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेज परनीशियस एनीमिया. परनीशियस मीन्स जो लॉन्ग लास्टिंग एनीमिया होता है, ज़्यादा देर तक रहता है. लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगती. लॉस ऑफ स्टेमिना, पर्सन का स्टेमिना जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है. फ्रीक्वेंट हेडेक्स, उसको हेड में बार बार पेन होता है. विटामिन C की कमी से होती है स्कर्वी. स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, जो उसके मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, उसमें से ब्लड निकलता है.
इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, उस पर्सन में जल्दी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। पेन इन लिम्स, लिम्स हमारे होते हैं लेग्स और आर्म्स, और उसमें पेन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, डिफॉर्म्ड बोन्स एंड जॉइंट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स एंड आर्क्ड लिम्स, बोन्स वीक हो जाती हैं। डिफॉर्म्ड बोन्स एंड जॉइंट्स मीन्स हमारी जो बोन्स और जॉइंट्स हैं वो डिफॉर्म, उनकी शेप चेंज हो जाती है। सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स, रिब्स सॉफ्ट हो जाती हैं। एंड आर्क्ड लिम्स, आर्क्ड लिम्स आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। आर्क्ड लिम्स मीन्स मैं नीचे बता रही हूँ, ये आर्क्ड लिम्स मीन्स जो लेग्स होती हैं पर्सन के, दे जस्ट टर्न लाइक दैट। ओके, आई होप आई एम ओके, दिस टाइप उसका शेप बन जाता है लेग्स का। दिस मीन्स आर्क, अंदर को मुड़ी होती हैं आर्क शेप में। विटामिन बी, विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड लॉस ऑफ मसल्स, इसके सिम्टम्स हैं ये। स्लो ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड हमारे ब्लड क्लॉटिंग का मीन क्या होता है, जैसे ब्लड कई बार हमें चोट लग जाती है, कोई स्क्रैच पड़ जाता है, तो ब्लड चाहे हम कोई मेडिसिन ना भी लगाएं, थोड़ी देर में अपने आप वो रुक जाता है। उसमें एक उसका कवर सा ब्राउन से कवर उसमें आ जाता है। सो दैट इज़ नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ओके, एंड विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके सिम्टम्स में लाइक उसका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत स्लो हो जाता है। विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड हीमोरेज। ओके, एंड दिस ऑल्सो सिम्टम्स क्या हैं, स्लो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड अपने आप क्लॉट नहीं होता, बहुत स्लो होता है। एंड द पर्सन जिसको थोड़ी सी भी चोट लगी हो उसका भी ब्लड बंद, अपने आप बंद नहीं होता। नेक्स्ट इज द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। The diseases caused due to deficiency of different minerals are given in table 2.7. First one mineral is calcium. Its disease is rickets in children and osteoporosis in adults. This also related with the bones for these diseases. Poor growth of bones and teeth, weak and fragile bones. Fragile मतलब जो जल्दी जिसमें फ्रैक्चर होने का डर रहता है। फास्फोरस, उसकी कमी से होती है रिकेट्स। Poor bone and teeth formation, loss of weight and poor dental health in adults. आयरन की कमी से एनीमिया होता है। जनरली एनीमिया इज़ अ डिजीज़ जो यंग चिल्ड्रन में भी जल्दी हो जाती है। पेलनेस ऑफ नेल्स एंड फेस, पीले पड़ जाते हैं नेल्स और फेस। लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, उसकी अमाउंट कम हो जाता है। फटीग मतलब पर्सन बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। एंड लॉस ऑफ वेट। आयोडीन, आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। गॉइटर जनरली क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारे नेक में थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वोलन हो जाता है और नेक जो बाहर को प्रोट्रूडिंग हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलिमिया, सिम्टम्स डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। एंड एक्सट्रीम मसल वीकनेस। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, टूथ डीके, दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, इनेमल इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द टीथ, ओके, दैट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, एंड वो डिफेक्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो सकता है एंड इट कैन क्रैक ऑल्सो। जिंक की कमी से क्या होता है, एनोरेक्शिया, हेयर लॉस, स्किन लीजन, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं। वाइट स्पॉट्स ऑन फिंगर एंड नेल्स, और फिंगर्स में हमारे फिंगर नेल्स में हमारे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं जिंक की कमी से। नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। Here are given brief description about undernutrition, malnutrition and obesity. First one, undernutrition. When the body gets less amount of nutrients than required, even if it is balanced, the body becomes weak and sick. This unhealthy state of body is called undernutrition. जब हमारी बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिलते जितने चाहिए होते हैं, that time the person becomes undernutrition. Okay, undernutrition may be due to following reasons: poverty, non-availability of sufficient food due to drought or other natural calamities. जनरली जो गरीब लोग होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में फूड अपने बच्चों को नहीं दे पाते। जैसे एक बैलेंस डाइट में
एक बच्चे को दाल भी चाहिए, वेजिटेबल भी चाहिए और उसको मिल्क भी चाहिए। सो इन दिस केस जो बच्चा है उसमें अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। देन नॉलेज डेस्क। People living on mountains often suffer from iodine deficiency and develop goiter. Mountains में जो लोग रहते हैं जनरली वो रॉक सॉल्ट खाते हैं, ओके, एंड सेंधा नमक जिसको कहते हैं, और दे डोंट टेक द आयोडाइज्ड सॉल्ट। सो उसके कारण उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयोडीन जो मिनरल है वो हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, जो हम जनरली जो सॉल्ट हम वेजिटेबल या दाल में डालते हैं उससे ही वो हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। गॉइटर इज़ अनकॉमन वहाँ पे नहीं होता ज़्यादा इन पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स बिकॉज दे टेक सी फूड विच इज़ रिच इन आयोडीन। कोस्टल एरियाज़ जो समुद्र के पास एरियाज़ होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर सी फूड खाते हैं जिसमें फिशेस, क्रैब्स, लॉबस्टर्स होते हैं और दीज आर रिच इन आयोडीन। सो इन लोगों को गॉइटर नहीं होता। मिल्क प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम। Next topic we are reading about the malnutrition. In malnutrition the food is lacking or has shortage of one or more nutrients. It is due to the intake of unbalanced diet. जब फूड में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसको मालन्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन रिजल्ट इन अ डिजीज़ कॉल्ड क्वाशियोरकर। अगर हमारे फूड में प्रोटीन नहीं है तो क्वाशियोरकर डिजीज़ हो जाती है। Whereas protein and carbohydrate malnutrition result in another disease called marasmus. इन दोनों के बारे में हमने पहले पढ़ा था। A malnourished child does not need costly medicines as tonics. He should be given the required amount of balanced diet. The government of India has started many programs to combat undernutrition in pregnant women and nursing mothers. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्रोग्राम्स लाए हैं जिसमें वो जैसे प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं या नर्सिंग मदर्स होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रोग्राम हैं जिससे उन्हें बताया जा सके कि उन्हें अंडर न्यूट्रिशन की कितनी ज़रूरत है। अ मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन हैज़ बीन स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड बैलेंस्ड डाइट टू पुअर अंडर नरिश्ड और माल नरिश्ड चिल्ड्रन। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे मिड डे मील स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर बच्चों को डे टाइम में लंच दिया जाता है और इसमें बच्चों की नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है और उनको एक बैलेंस डाइट दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ईटिंग एनर्जी रिच फूड इन एक्सेस मोर देन नीडेड बाय द बॉडी कॉजेज फैट डिपोजिशन इन द बॉडी एंड लीड्स टू ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, चिप्स, वेफर्स एट्सेट्रा, उससे क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ओबीज पर्सन्स आर प्रोन टू हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड एंड डायबिटीज़। सो जो ओबीज मोटे लोग होते हैं उनको हार्ट डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का डर रहता है, कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है और उनको डायबिटीज़ जो शुगर की डिजीज़ होती है उसको भी होने का डर रहता है। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। Obesity in children has become a common problem these days. This is due to excessive intake of junk food like pizzas, potato, wafers, noodles, ice cream and soft drinks. Instead of playing outdoor games, playing games on computer and watching TV for long hours are some other causes of obesity. So these are the main causes of obesity. एक तो उनका फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में अगर वो जंक फूड खाते हैं और उसके साथ साथ वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, तो उसके कारण क्या हो जाता है, बच्चों में मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है। नाउ check point 3, this is your homework you have to do, and in the next classes we will discuss about them. Then practice time, take the correct answer, go through the chapter thoroughly, read it thoroughly and answer these questions. Write true and false. After that you have to do on your own science quiz and puzzle. This all we will discuss in the next classes. Okay, that's all for this chapter. Thank you.